Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain A Long Walk to Freedom taken from Nelson Mandela's autobiography. So, I am going to start the main points of this chapter. अगर अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे. So without making too much delay, I am going to start main points of the chapter A Long Walk to Freedom. See these points. A Long Walk to Freedom is taken from the autobiography of the first president of South Africa, Nelson Mandela. It describes the inauguration ceremony which was held on 10th May 1994. Whole world witnessed this program on television. But some of the important leaders of the world attended this program, attended this ceremony. When he took oath, he remembered those African leaders who sacrificed their life in the freedom struggle. If you go through the chapter, you will learn about the speech of Nelson Mandela given on that day. Okay, and he remembered many leaders of the South Africa who sacrificed their life for the sake of freedom. This freedom struggle was a struggle of very important and hard earned win, that is freedom of South Africa against the white people. White people oppressed South African people a lot. So this struggle was known as a struggle against racial discrimination and apartheid movement. Hundreds of people suffered from oppression and imprisonment. It was a struggle against racism and racial discrimination. It was a struggle against racism because those people believed in racial discrimination. The rulers were white and the fighters, they were black people. They wanted freedom from the white people. So this was a struggle of racial discrimination, and they were taking a struggle in their hands against the white people. Mandela and others and other leaders wanted freedom. They respected others' freedom. They believed equality, humanity, forgiveness, and courage. They believed equality, humanity, forgiveness, and courage. And the last point is they believed in physical freedom, economic, and political freedom. They believed in physical freedom, economic, and political freedom. So they fought against the white oppression and got real freedom. So they fought against the white oppression. The white people were crushing the black people. So they wanted freedom and ultimately they got it. And Nelson Mandela became the first black president of South Africa. So these are the main points. अब आपको मैं थोड़ी हिंदी में बता देता हूँ. A Long Walk to Freedom is taken from the autobiography of the first black president of South Africa, Nelson Mandela. कहते हैं कि A Long Walk to Freedom ये लिया गया है नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से, जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. इट डिस्क्राइब्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी. ये डिस्क्राइब करता है जब उस दिन वो ओथ लेने जा रहे थे नेल्सन मंडेला अपने फ्रेंड्स और लीडर्स के साथ, तो उस दिन के इनॉग्रेशन सेरेमनी को डिस्क्राइब करता है. विच वॉज हेल्ड ऑन 10th May 1994.
ये 10 मई 1994 को हुआ था। होल वर्ल्ड विटनेस दिस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। कहते हैं कि पूरा विश्व इस प्रोग्राम को टेलीविजन पे देखा। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स अटेंडेड दिस सेरेमनी। ठीक है, अटेंडेड दिस सेरेमनी। कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स जो विश्व के थे वो इस प्रोग्राम में भाग लिए थे। When he took oath, he remembered the African leaders who sacrificed their life in the freedom struggle. जब उन्होंने ओथ लिया तो उन्होंने उन लोगों को याद किया, उन नेताओं को याद किया जो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिए थे और एक्चुअली साउथ अफ्रीका को गोरों से आजाद करवाई, because white people were crushing the black people. Hundreds of people suffered from oppression and imprisonment. कहते हैं कि सैकड़ों लोग जेल में बंद हुए और बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइफ को सैक्रिफाइस किया इस फ्रीडम स्ट्रगल में। इट वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट रासिज्म एंड राशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये रंग भेद और रंग भेद नीति के अगेंस्ट में ये स्ट्रगल था। नेल्सन मंडेला ने इसे अच्छी तरह जीता। मंडेला एंड अदर लीडर्स वांटेड फ्रीडम। मंडेला और दूसरे लोग आज़ादी चाहते थे। एंड दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, फॉरगिवनेस एंड करेज। उन लोगों का विश्वास था समानता पर, स्वतंत्रता पर, दया पर और साहस पर। सो दे बिलीव्ड इन फिजिकल फ्रीडम। उन लोगों का विश्वास था कि आदमी को व्यक्तिगत आज़ादी भी मिलनी चाहिए। फिजिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। वो लोग आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी चाहते थे और ये फ्रीडम उन लोगों ने 10 मई 1994 को ले लिया। सो दे फॉट अगेंस्ट द वाइट ऑपरेशन एंड गॉट रियल फ्रीडम। इसलिए रंग भेद नीति के अगेंस्ट में उन लोगों ने फाइट किया वाइट ऑपरेशन के अगेंस्ट में और अल्टीमेटली फ्रीडम लिया। एक चीज आपको और बता दें कि ये साउथ अफ्रीका के लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो उन पर बैन भी लगा हुआ था। काफी दिनों तक वो लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे और अल्टीमेटली केपलर वेसल्स के नेतृत्व में उनकी टीम, साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आके टेस्ट मैच खेली थी बहुत दिनों के बाद, लगभग 25 से 30 सालों के बाद। तो ये जो बैन लगा था और जब उन लोगों ने फ्रीडम अचीव किया तो वे सारे लोग भारत आए और भारत आके क्रिकेट खेले। तो इस तरह साउथ अफ्रीका का क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ काफ़ी लंबे दिनों के बाद। ये देन है नेल्सन मंडेला की, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने ब्लैक प्लेयर्स को भी वाइट प्लेयर्स के साथ खेलने की फ्रीडम दी। तो ये पूरा चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़िए और जब आप ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आप पूरे चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स को जो मैंने बताया है वो आपको हेल्प करेगा नोट्स और क्वेश्चंस बनाने में। तो चलिए ये वीडियो मैं अभी यहाँ रोक रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में आपको आगे वाले चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं नेल्सन मंडेला के बारे में एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि नेल्सन मंडेला का क्या कैरेक्टर रहा है और कैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया है। तो अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर इट। ओके, थैंक यू।